খন্তেক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু বিৰতিৰ পিছত পোনপটীয়াকৈ আমি যাব বিচাৰিছো বিধানসভাৰ মাজলৈ। हम तहे दिल से खुसूसन आसाम के बाशिंदों की तरफ से आपका पुरतबाक इस्तकबाल और पुरजोश स्वागत करते हैं। जानिए, आपसे मिलने और आपके बुलंद और शशपहल हिरासिफत शख्सियत से रूबरू होकर कुछ पा लेने और कुछ सुन लेने का दिल में मचलता हुआ अरमान आज पूरा होने को है। जो ही आप तशरीफ़ लाए, हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई कीमती ख़जाना या कोई मसीहा हमारे अंदर आ गए। अल्लाह मालिक कायनात आपको एक सायादार दरख्त के मानिंद बेशबहा ज़िंदगी से हमकिनार करे और हमारे मुल्क को आगे तरक्की की राह पर ले जाने के लिए आप सबसे बड़ी वजह बने। मैं अपने इस्तकबालिया बयान को एक शेर से ख़त्म करता हूँ। दिल वाले और भी होंगे आपके शहर में, दिल वाले और भी होंगे आपके शहर में, हमारे अंदाज़े वफ़ा आपको अक्सर याद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हाफिज डांगरियालय श्री अतुल बरा। Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, Lok Sabha, Birla, sir. Honorable Chief Minister, Leader of the House, Dr. Himanta Biswa Sarma Dangoria. Honorable Deputy Speaker, sir. Honorable Leader of the Opposition, Honorable Ministers, and Honorable Members of the House. It is a great privilege for us to have with the Honorable Lok Sabha Speaker Birla ji in this midst today. On behalf of the AGP, I welcome him for his maiden visit to the Assam Legislative Assembly. What we have come to know that he has a strong background, social and political background. He was a student leader and he traveled a long way being a student leader. And he was never defeated in the electoral politics. He was elected as Lok Sabha Speaker in 2019. And as we all know that this is a very tough job, but we are delighted to see the way he handling the affairs of the parliament. We are really happy, we are thankful to him. Sir, you have immense contribution towards strengthening our democracy, our parliamentary democracy, and we wish that you will contribute more in the near future through your innovative ideas. I don't want to speak more because we are all here to hear valuable words from your lips. We are waiting for that, and already you have launched digital TV of the Assam Legislative Assembly. We are all witness of that. We are thankful. We are really thankful to him, thankful to you, sir. And at last, I offer my best wishes for a happy and prosperous New Year and Merry Christmas. Thank you, sir. Thank you, Sri Govinda Basamotari.
Honorable Speaker, sir, and most respected Speaker of Indian Parliament, Sri Om Birla ji. People of democracy shall have the opportunity to flourish in the Indian Parliament under your able leadership. We know that you are a philanthropist Thank you. and We have no a more soft time. and people. We feel fortunate, a man of compassionate heart like you among us. We are really inspired and blessed by your visit. May God bless you to successfully lead the House and the nation. Thank you. Say Durga Das bolo. Ekdam shortly. Honorable Speaker, sir, Honorable Speaker, Lok Sabha Om Birla ji, Honorable Chief Minister of Assam, Shri Himanta Biswa Sharma ji, Honorable Opposition Leader Saikia ji, and my colleague. I am honored and privileged to welcome the Honorable Speaker of Lok Sabha Om Birla ji. I would like to express gratitude to him for being us here today in Assam Assembly. Warm welcome wishes from Bodoland People's Front. It's a moment of immense pride of the people here to be in presence of the Speaker to world largest democracy, India. Mr. Speaker, sir, is such a personality whose work life has revolved around social service all this year after having completed 3 tenure himself a member of the Legislative Assembly, Rajasthan, followed by being successful parliamentarian and now a successful Lok Sabha Speaker who has run the parliament with utmost responsibility and extreme success. To believe under his guidance, I will inspire us work towards achieving great success for him nation. इसके साथ साथ आपने सारे पार्टियों का जो पार्लियामेंट में हम लोग देख रहा है कि आप इतने अच्छे तरह से पार्लियामेंट चलाते हैं कि हर पार्लियामेंट का जो कामकाज है, असेंबली का जितना स्पीकर है, बहुत गौर से इन लोग देखिए और हम लोगों को भी कम से कम जो विरोधी होता है इन लोगों को मौका दे, यही आशा रखता हूं। आज आपका जो मार्ग है, सारे इंडिया जो देख रहा है, सारा इंडिया का जो स्पीकर्स है स्टेट असेंबली का, उन लोग भी कम से कम फॉलो करें और कम से कम अगर विरोधी ही नहीं रहेंगे तो मुद्दे तो यहाँ डिस्कस होगा ही नहीं। अगर हम लोग ही काट मोशन नहीं लाएंगे तो कैसे डिस्कशन होगा? ना रूलिंग को मिलेगा ना अपोजिशन को मिलेगा डिस्कस करने के लिए। इसलिए आपका जो आदर्श है, आपने जो दिखा रहा है सारे इंडिया में, आप पहले बार पार्लियामेंट का स्पीकर है, लेकिन इतने अच्छे आप चला रहे हैं कि आपको नहीं लगता है कि पहले बार है, बहुत पहले से है ऐसा लगते हैं। इसलिए आज आपका आशीर्वाद, हमारा जो आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली का जो मेंबर्स है, इन लोगों को भी मिला है, इसलिए आपको बहुत हृदय से आदरणीय मैं आपको आसाम में वेलकम करता हूं। चाहता हूं कि फिर दोबारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बताया कि आप नया जो विधानसभा होगा हम लोग, ये भवन भी आप कम से कम ओपन कीजिए, यही आशा रखता हूं। थैंक यू। धन्यवाद। आपने मुझ पर इल्जाम लगाया हमारे पिताश्री ने अधिकारी के पास में। हाउस में तो सभी को मौका दे रहा हूं, लेकिन तो भी आपने इल्जाम लगाया। ठीक है, तो अभी मैं ऑनर करना चाहता हूं, समय थोड़ा कम है, बात तो एक ही है, सब वेलकम किया ऑन बिहाफ ऑफ हाउस। तभी हमारी अतिथि हमारी लोकसभा की
स्पीकर ऑनरेबल श्री ओम बिरला जी को मैं अभी भाषण रखने के लिए अनुरोध करता हूं। लोकतंत्र के मंदिर असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आपके बीच में उपस्थित होकर बहुत प्रसन्नता हुई। मैं असम विधानसभा के सभी निर्वाचित विधायकों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं जिस अपेक्षाएं, आकांक्षाओं, विश्वास, भरोसे के साथ आपको भेजा है, आप उसी अपेक्षा, विश्वास, भरोसे के साथ जनता की अपेक्षा के अनुरूप इस विधान में सभा में काम करते हुए इस प्रदेश को चौमुखी विकास की ओर ले जाएंगे। असम भारत का वह पूर्व प्रदेश है जिसको कहते हैं कि पूर्व प्रदेश का आधार, और असम की जितनी विशेषता की जाए, इसका समृद्धशाली इतिहास, इसकी गौरवशाली परंपराएं, अध्यक्ष जी ने पूरा महाभारत का इतिहास बताया, ब्रह्मपुत्र की वो नदी जो हमारी जीवन धारा है, हम सबकी आस्था, विश्वास, कामाख्या माता जी का मंदिर, प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो असम अपने आप में इस देश का एक प्रमुख प्रदेश है। और कहते हैं कि जैसा कोई नहीं वैसा असम है, और यही असम की विशेषता है। अभी सदन के नेता, राज्य के मुख्यमंत्री जी ने असम के गौरवशाली इतिहास, यहां की समृद्ध परंपराएं, परपाटियां, यहां के पूर्व मुख्यमंत्रियों का इस प्रदेश में योगदान, उसके बारे में चर्चा की। 8 दशकों तक इस विधानसभा का एक लंबा इतिहास रहा है, और जिस तरीके से मैं कह सकता हूं कि संघर्ष के प्रेरणा, जिन्होंने इस प्रदेश के लिए नहीं, पूरे इलाके के लिए संघर्ष किया, त्याग बलिदान दिया, ऐसे भारत रत्न गोपीनाथ बोरदल जी को भी हम याद करते हैं। हम आज याद करते हैं हमारी संस्कृति, सांस्कृतिक, संगीत को देश ही नहीं पूरे विश्व के अंदर पहुंचाने वाले भारत रत्न, जिन्होंने एक नया नाम दिया, भूपेन हजारी जी को भी हम इस मौके पर याद करते हैं। आज मैं क्रिसमस की भी आपको बधाई देता हूं, और उसी के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रबल समर्थक, देश के विकास की नई गाथा लिखने वाले, पूर्वोत्तर प्रदेश के अंदर जिनका विकास में बहुत योगदान रहा, सीधे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं स्मृति और नमन और श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, ये 75 साल की हमारी लोकतंत्र की यात्रा, जिसको हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं,
इस 75 साल की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर लोकतंत्र और सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के प्रति और जवाबदेह हुई है और जनता की अपेक्षाएं भी इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति और बढ़ी है। इसलिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उनकी अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा कर सकें। साथियों, शासन की प्रणाली को हम जितना अधिक सार्थक, सहभागितापूर्ण, पारदर्शी और समावेशी बनाएंगे, उतनी लोकतांत्रिक संस्थाएं ज्यादा जनता के प्रति जवाबदेह होगी। और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इस लोकतांत्रिक संस्थाओं को पारदर्शितापूर्ण बनाएं, समावेशी बनाएं और चर्चा संवाद का केंद्र बनाएं। पिछले दिनों पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन, जो हमारी शताब्दी वर्ष का सम्मेलन था, उस पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ने व्यापक चर्चा की, संवाद किया कि किस तरीके से हमारी इस लोकतंत्र की 75 साल की यात्रा और आने वाले समय के अंदर जब हमारा 100 साल शताब्दी वर्ष होगा लोकतंत्र का, उस समय की हम व्यापक कार्य योजना कैसे बना सकते हैं। और साथियों, आज मुझे गर्व है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी आज लोकतंत्र पर चर्चा करने लगे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, दुनिया के बड़े लोकतंत्र देशों ने विचार विमर्श किया कि इस लोकतंत्र को कैसे सशक्त किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए। और लोकतंत्र के अंदर यह माना गया कि संसदीय लोकतंत्र ही सबसे बेहतर विकल्प दुनिया के अंदर है। और भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारी पुरातत्व संस्कृति में, संस्कारों और विचारों में, हमारी कार्यशैली के अंदर हमेशा लोकतंत्र रहा है। ये लोकतंत्र हमारे आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। आप जब इतिहास को देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा लोक कितना समृद्धशाली था, कितना गौरवशाली था, और उसी लोकतंत्र की इस यात्रा को हमने आगे बढ़ाया। लेकिन आजादी के बाद जब हमारा लोकतंत्र आया तो हमने उस लोकतंत्र को भी जनता को समर्पित किया। लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता द्वारा बनाया गया। और इसलिए मैं आज उन संविधान निर्माता बाबा अंबेडकर जी और मनुष्यों को भी याद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे इस लोकतंत्र को जनता के प्रति समर्पित रखा। और विशेष रूप से लोकतंत्र के अंदर समानता और लोकतंत्र के अंदर जनता का बीच में रखकर जो हमारा संविधान बना, आज दुनिया के अंदर कई देश भारत के संविधान का अनुसरण कर रहे हैं। और यही हमारी विशेषता है कि जहां पर हम समानता के साथ चल रहे हैं, लोकतंत्र मूल्यों पर आस्था विश्वास रखते हैं, वहां हमारे लोकतंत्र में बहुलवाद और विविधताएं हमारे लोकतंत्र को और सशक्त कर रही है और मजबूत कर रही है। भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विविधता हैं, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग वेशभूषा है। लेकिन उसके बाद भी ये संपूर्ण विविधता है हमें जोड़ने का काम कर रही है। उसमें मूल में लोकतंत्र है। और इसलिए मैं कह सकता हूं, चाहे पूर्व में चल जाए, पश्चिम में चल जाए, उत्तर में चल जाए, दक्षिण में चल जाए, जब संसद में मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये बहुलवाद, दलीय व्यवस्था, ये विविधता वाली संस्कृति,
किस तरीके से हमारे लोकतंत्र को और सशक्त करती जा रही है और मजबूत करती जा रही है। और इसीलिए जब हमारे संविधान निर्माताओं ने यह बनाया था तो उनके मूल में एक विचार था कि हम नागरिकों की संप्रभुता करें और इसीलिए नागरिकों की स्वतंत्रता हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, संप्रभुता हो और हमारा लोकतंत्र ऐसा हो कि कितने भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हमारे लोकतंत्र के अंदर जनता को मध्य में रखकर हमारी चुनाव प्रणाली को बनाया गया। और आज